This conference will now be recorded. Right there, all fine. So बच्चों, last class में we started with the second law of thermodynamics. We introduced the entropy, that is a measure of randomness, disorder. The greater the disorder, the greater is going to be the entropy. ये एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया को चलाती है. The second law of thermodynamics said that entropy, randomness of the universe always increases. ऐसा ही होगा, कोई violation हो ही नहीं सकती है. In the course of every spontaneous or natural process. We discussed that अगर किसी process को होना है delta S total, remember entropy के अंदर system and the surrounding दोनों को मिला के बात करनी है. अगर total entropy is going to increase, the process is going to be spontaneous. And अगर total entropy is going to decrease less than zero, negative होगी, the process cannot be spontaneous. You call it non-spontaneous. आने वाले discussion में NS बोल देंगे. और अगर zero हुआ, the process will be at equilibrium. Equilibrium का मतलब होता है दोनों forward और backward दोनों processes हो रही हों. एंड डेल्टा एस अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है तो उसके लिए भी जीरो होगा, क्योंकि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इट हैज टू बी जीरो. यू आर पासिंग थ्रू वेरी इंपॉर्टेंट फेज. प्रोग्रेस ऑफ एनी प्रोसेस, इस वक्त रिएक्शन, in terms of entropy change can be represented as this. See, on this axis I have plotted delta S and this axis पे time coordinate है. If this is the reactant and this is the product, the reaction will always go like this. That is, it will start climbing, increasing entropy. Entropy बढ़ रही है, spontaneity है. And you know, entropy तब तक बढ़ेगी जब तक entropy एक maxima touch नहीं कर जाएगी. यहाँ पे no more change in entropy is going to be observed. That stage is known as equilibrium stage. And अगर आप प्रोडक्ट से चले बेटे तो भी इक्विलिब्रियम की तरफ हमने पाया, डिस्कवर किया, द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग. वंस यू रीच इक्विलिब्रियम, उसके बाद एंट्रोपी थोड़ी कम होगी और हमें मिलेगा प्रोडक्ट. नाउ सी, यहाँ पे दो चीजें ध्यान से देखो. One is delta S, right? R, that is instantaneous at any time t, right? This chota sa is delta S. This is delta S. Delta S can be positive, delta S can be zero. But this is delta S R naught. This is the standard. It is entropy of product minus entropy of reactant. अगर प्रोसेस ने होनी है तो इसको हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. इंपॉर्टेंस की वजह से बच्चों एक बार दोबारा देखो. राइट, सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फॉरवर्ड स्टेज. ऑन दिस एक्सिस आई टेक डेल्टा एस, इंक्रीजेस. दिस एक्सिस पे कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लीजिए, इस वक्त हम टाइम ले रहे हैं. द रिएक्टेंट विल बी समवेयर हियर, the product will be somewhere here. The net change in entropy will be delta S R naught. ये कैसे निकालोगे? Product minus reactant. But the reaction will not go like this. It will move, it will climb in this way. And there, top के ऊपर, no more
entropy change will be observed, and you can say at this point entropy of the totals is going to be maximum. That stage is known as the equilibrium stage. Equilibrium ने तो आना ही आना है. That is, on moving from either reactant or product, I'm repeating that delta S R increases. It goes to the maximum. टॉप पे जो गया था, ये वाली स्टेज. Delta S is maximum. Delta S does not undergo further change. That position is known as equilibrium. पूरी केमिस्ट्री में हम इसको EQBM क्लास नोट्स में लिखेंगे. Now you know why no reaction goes to 100% completion. It goes to equilibrium. Why? Equilibrium पे the entropy is going to be maximum होने वाली है. You understand? Entropy, it's a natural law. So hence we reiterate second law of thermodynamics. Everything in this universe is moving towards maximum randomness. Randomness you can call chaos. कोई order नहीं है, ऐसा होगा. The entropy is the measure of randomness. The entropy is the measure of randomness. main points discuss कर रहे हैं. सॉलिड टू लिक्विड टू गैस एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर के बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर के घटाने से एंट्रोपी बढ़ेगी. डेल्टा एस आर नॉट, प्लीज स्ट्रेस करिए, नॉट इज द स्टैंडर्ड. इट इज प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस एंट्रोपी की एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. एंड यू ऑलरेडी नो डेल्टा एस निकालना कैसे है. हीट चेंज डिवाइडेड बाय the temperature at which the process happened. It is going to be the entropy change हमें बताएगी. What is the driving force for the spontaneous reaction? First, delta H is equal to negative. This is a favorable condition. This is not the only sufficient condition. आपने देखा पॉजिटिव वाले भी होते हैं, जीरो वाले भी होते हैं. But the second point is the defining point. अकेला काफी है, ऊपर वाला अकेला काफी नहीं है. अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगी किसी भी प्रोसेस में, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट डेल्टा एस टोटल सिस्टम की नहीं लेने हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों की लेनी है, देन द प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांस. प्लीज अपना चश्मा साफ करिए. That is going to be एक पिलर आएगा बेटे आपके लिए. The driving force, ये वाला is the sole and sufficient condition. Delta H negative is just a favorable condition. Just a favorable condition. It's okay. Let's move further. Now, for isothermal expansion of an ideal gas. So now, derivation is not in your syllabus, but you should know that. आपके competitions में क्वेश्चन आएंगे और पूछे जाते हैं. Delta U is equal to Q plus W. You remember first law of thermodynamics. अब अगर isothermal expansion of an ideal gas है, we remember Q is equal to, delta U is equal to 0. Isothermal जो एक्सपेंशन है प्रोसेस आइडियल गैस के लिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, होल्डिंग फोर्सेस उसमें होती नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी इज गोइंग टू बी 0. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से Q इज इक्वल टू माइनस W, राइट. आपको याद है आपने डिफाइन किया था डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T. तो क्या मैं यहाँ पे आपके पास डाल सकता हूं Q रिवर्सिबल की जगह पे माइनस W बाई T. ठीक. नाउ आई होप यू रिमेंबर वर्क डन, राइट. वर्क डन irreversible, work done was given by reversible 2.303 nRT log V2 by V1. उसको उठा के इधर डाल दिया, तो ये टेम्परेचर के साथ कट गया. 2.303 माइनस माइनस कैंसिल हो गया. You arrive at a relationship delta S is equal to 2.303 nR.
log V2 by V1. Or you remember P1 V1 is equal to P2 V2 for isothermal. So 2.303 NR log P1 by P2 is going to be the case. Copy these relationships, they will be helpful somewhere with it. Right? Do not forget it. For reversible adiabatic expansion, वो पिछले वाला किसका था? Isothermal का. This is adiabatic. मैं हाईलाइट कर देता हूं so that you know the difference. Q तो होता नहीं था. Adiabatic is no heat change is permitted. So here this term is 0. So delta S is going to be 0 and it is but obvious अगर heat change नहीं हुई है तो entropy change नहीं होगी. Such adiabatic processes are known as isoentropic processes. The heat change does not happen. Now we can combine the two natural laws. The energy of the universe is constant, first law, but the entropy of the universe is increasing. You agree or not, but it is a truth. We are moving toward chaos. हर चीज डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है. आपने शायद सुना होगा ये यूनिवर्स भी बढ़ रहा है, फैल रहा है. What is that? Entropy is going to be there. Nobody knows what is going to happen. So that is thermodynamics philosophy. एक बहुत भयंकर फिलॉसफी है. Now see बेटे क्या कर रहे हैं हम, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हमें स्पॉन्टेनिटी देखती थी तो हमें डेल्टा एस टोटल देखना पड़ता है, which is sum of entropy of system and the surrounding. Right? हम अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल G, which is known as Gibbs free energy इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. जैसे आप डेल्टा H ही जानते हैं, डेल्टा U ही जानते हैं, डेल्टा S ही जानते हैं, वैसे हमारे पास चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी द ओनली इंपॉर्टेंट टर्म. डेल्टा G अभी प्लीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, समझाऊंगा. इस एक ऐसी चीज होगी, अगर ये नेगेटिव है the process is going to be spontaneous. What is the benefit between the first and the second? This is second जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इसमें सिर्फ सिस्टम को देखा जाएगा, जबकि इंट्रोपी में आपको एक स्टेप ऐड करना पड़ता है, सिस्टम और सराउंडिंग को देखा जाएगा. अगर डेल्टा G आपकी नेगेटिव हुई, the process is going to be spontaneous system, और यहाँ पे आपको टोटल देखना पड़ता था. That is going to be the difference, और आप कह सकते हैं आसानी होगी. So हम एक और important चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे, that is known as the Gibbs energy. The Gibbs energy, please, very important. It is another parameter for predicting spontaneity of the reaction. It is used only for the system. The in free energy is defined as enthalpy minus temperature times entropy. जैसे G नहीं हम मेजर कर सकते, H नहीं मेजर कर सकते, वैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं डेल्टा G सिस्टम. डेल्टा H minus T delta S system. That is known as the Gibbs-Helmholtz equation. Write it in your rough page, rough notebook. अभी के लिए क्लास नोट्स बाद में बनाना. The delta G system, Gibbs free energy for the system is the delta H system. उसमें से subtract किया T temperature केल्विन में, and delta S system जितना भी होगा, हमारे हाथ में एक डेल्टा G आ जाएगी. आप काफी इंपॉर्टेंट चीज में से निकल रहे हैं बच्चों, तो जरा थोड़ा सा ध्यान करिएगा, थोड़ा सा नहीं काफी ध्यान करिएगा बेटे. राइट, काफी ज्यादा. तो लेट्स सी क्या करवाने वाला हूं. डेल्टा G इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी. हम
आपको ये बताने वाले हैं व्हाई डेल्टा जी इज नोन एज फ्री एनर्जी। एक बार पढ़ लो, समझाता हूं, 2-3 बार रिवाइज करूंगा। यू रिमेंबर, ये हमने इंट्रोड्यूस किया। where delta G system is the enthalpy change। आपने कोयले को जलाया, जितनी भी डेल्टा H हीट उसमें से निकली, दैट इज डेल्टा H सिस्टम, उसमें से निकली। उसमें से T डेल्टा S सिस्टम इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तुमने 100 एनर्जी यूनिट पैदा की, उसमें से 4-5 यूनिट एनर्जी आपके हाथ में नहीं आएगी। वो कहाँ गई? वो कुदरत आपसे लेके जाएगी। तो डेल्टा जी is the net energy available for doing useful work, and it is measure of energy that can be converted into doing useful work। दोबारा समझो, आते हैं, वहीं पे आते हैं। Please, this is a philosophy, so be with me। Imagine आपके पेरेंट्स ऐसे ही बेटे, एग्जाम्पल कोट कर दिया, 100 रुपीज किसी प्रोसेस में मेजर करते हैं, लेट इट बी एक मंथ में मेजर अर्न करते हैं। आई नो इट इज वेरी लेस, बट दिस इज परसेंट स्केल पे लेके जा रहा हूं। नाउ ये तो उन्होंने टोटल अर्निंग है। नाउ दिस अर्निंग इज नॉट ब्रॉट होम। इसमें से वी पे समथिंग known as income tax। Now income tax is necessary। ये पूरे समाज को चलाने के लिए होता है, हॉस्पिटल बनते हैं, सड़कें बनते हैं, एजुकेशन होती है, बला 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 बला, आप इससे बच नहीं सकते हैं। So the net money brought home, that is free money जो हमारे हाथ में आया, is 100 minus suppose 20, that is the income tax। कितना आया? 80। Now with this money you can have food, you can buy clothes, you can buy electricity, you can buy tuition fees, you can do everything। So ये 100 रुपया आपके काम का नहीं था। आपके पास जो नेट मनी बचा था यूजफुल वर्क करने के लिए, वो इनकम टैक्स आपने देना ही पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी द फ्री एनर्जी। यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में दिस इज द फ्री मनी to do useful work। So similarly बच्चों, the mother, the nature also takes something from you। यहाँ पे सरकार इनकम टैक्स लेती है, डेल्टा एच माइनस ये डेल्टा एच जो आपने पैदा की, कुदरत अपना एक टोल टैक्स ले जाती है कि मुझे भी तो दुनिया चलानी है, एंड हमारे हाथ में जो आता है बेटे, दैट इज गोइंग टू बी द डेल्टा जी सिस्टम आता है। This is the net energy available। There is the difference between net and the gross energy produced। You understand? This is always the income tax, the unavailable energy। और ये वेस्ट नहीं जा रही एक तरीके से, ये ब्रह्मांड को चलाने के लिए जा रही है। एंड मजेदार बात, क्या सरकार अपने आप को इनकम टैक्स पे करती है? नो, इट इज द ओनर, राइट? उसके पास पैसा आता है तो वो खर्चा करती है, वो उसके ऊपर इनकम टैक्स किसको देगी? सो सिमिलरली द मदर, द नेचर डज नॉट पे दिस टी डेल्टा एस। उसके लिए डेल्टा एच सिस्टम इज डेल्टा जी सिस्टम। अगर तुम एलपीजी गैस को जलाओगे तो उसमें से ऐसे ही बोल दिया 890 यूनिट ऑफ एनर्जी मिली, तो हमारे हाथ में वो 890 नहीं आएगी, लिटरली 700 आएगी। बट अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जल रहा है, राइट, एटीपी से एडीपी की कन्वर्जन हो रही है, जितनी भी एनर्जी पैदा हो रही है वो पूरी की पूरी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। द नेचुरल प्रोसेसेस, नो वेस्टेज। वी जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं, वेस्टेज विल बी देयर, डेफिनेटली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके घर में जो मनी आया था, that is 80 out of every 100
into this, तो efficiency घर आने वाले पैसे की कितनी, 80%. Similarly, the delta G by delta H into 100 is known as thermodynamical efficiency. किसी प्रोसेस में नेट हमारे हाथ में कितना आता है डियर, दैट इज अ थर्मोडायनेमिकल एफिशिएंसी. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके स्कूल में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा. डेरिवेशन है तो बेटे उसके स्टेप्स होते हैं, यू हैव टू बी विद मी. प्रूव डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन. वर्क डन नॉन एक्सपेंशन, आप इसको वर्क डन नॉन एक्सपेंशन को डियर यूजफुल वर्क भी कह सकते हैं. यूजफुल वर्क भी कह सकते हैं. दैट इज, और सुनो, इसको 4-5 बार डेरिवेशन को अपने हाथ से करना. यस, मैंने 4-5 किया. डेल्टा जी सिस्टम is that thermodynamical quantity of a system. The decrease in whose value during the process is equal to maximum value of useful work, non-expansion work that can be obtained from the system. हमेशा कुछ एनर्जी तो वेस्ट होनी है. एक्सपेंशन वर्क मेरे लिए काम का नहीं है. आपने गैस को जलाया तो उसमें से कुछ हिस्सा ही मेरे काम में आएगा, दैट इज द नॉन एक्सपेंशन. बाकी तो गैस के वॉल्यूम को बढ़ाने के काम में आ रहा है, वो मेरे काम का नहीं है. आपने अपने पेंसिल सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन किया, उसमें से एनर्जी तो बड़ी निकली, उसमें से कुछ फ्रैक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बाकी सब हीट के रास्ते से बाहर खत्म हो गया. सो दैट इज गोइंग टू बी द यूजफुल वर्क. विद delta G system is equal to maximum amount of useful work, non-expansion work that can be obtained from the system. Important, please continue. You remember from first law, हम delta U is equal to Q minus W भी कह सकते हैं. Yes, work is done by the system, so हमने minus sign use किया. Now the work done can be of two types, expansion and non-expansion. एक्सपेंशन एंड नॉन एक्सपेंशन में से बेटे यूजफुल कौन सा है? द नॉन एक्सपेंशन वर्क इज द यूजफुल वर्क. नाउ इसको एक्सपेंशन वर्क को पी डेल्टा भी डाल सकता हूं और नॉन एक्सपेंशन वर्क को एब्रिविएशन में एनई लिख दिया है. अंडरस्टूड? नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. सो हम क्या करते हैं, ये डेल्टा यू को उठा के, आई एम सॉरी, इस पूरी टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं, Q को छोड़ देते हैं, तो आपके पास एक तरफ रह गया Q और एक तरफ रह गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन. समझ गए? हमने इससे इसमें कैसे आए, वही इक्वेशन है, रीअरेंज कर दिया. नाउ do you remember this term is equal to delta H? Q is equal to delta H plus work done non-expansion आ गया, right? We have arrived at this equation. Also, delta S is equal to Q reversible by T. That is Q reversible is equal to T delta S आ गया, right? तो अगर मैं इस Q की जगह पे T डेल्टा S डालता हूं तो इस इक्वेशन में आ गया T delta S is equal to delta H plus work done non-expansion dear. Now इस work done expansion को हम इधर ले आए और T delta S को इधर ले आए, rearrange कर दिया. Once you rearrange, minus work done non-expansion is delta H minus T delta S आ गया. Clear? Delta H minus T delta S is equal to delta G आ गया. That is, we have proved that work done non-expansion is equal to delta G. और अगर मैं माइनस इधर ले आता हूं तो work done non-expansion is
minus delta G. This is extremely important. Extremely important. डेरिवेशन नहीं पूछेंगे शायद आपसे, बट आपसे कॉन्सेप्ट तो पूछेंगे बेटे, यहाँ पे ध्यान करो. That is decrease in free energy is equal to maximum amount of useful work that can be obtained from the system. Very important. Very, very important. Don't forget it, son. ठीक, भूलने का किसी भी हाल में नहीं. The delta G decrease in free energy. एक सेकेंड बेटे. The delta G is going to be minus work done non-expansion, that is maximum amount of useful work that can be obtained from the given process. I'm writing it 1 because this is going to be an important thing, so I'm just taking it, shifting it further. दोबारा अलग चीज, second derivation, important, please be with me. Delta G system negative is the sole condition for the spontaneity of the given process. हम डेल्टा एस टोटल को पॉजिटिव तो प्रूव कर चुके हैं, अब हम दूसरी चीज लेके आ रही हैं. डेल्टा जी सिस्टम इज द कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी. कंडीशन होगी. बी विद मी. क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए. ये पॉइंट क्लियर है. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ठीक है. ऑल्सो you know that Q surrounding is equal to Q system minus. अरे सिंपल सी चीज देखो ना, सिस्टम ने 100 अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस की, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सराउंडिंग को मिली तो सराउंडिंग की बढ़ गई. या सराउंडिंग ने कोई एनर्जी दी, सराउंडिंग की कम होगी, सिस्टम की एनर्जी तो बढ़ गई. तो अगर आप सराउंडिंग और सिस्टम में हीट को कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा बच्चों? माइनस साइन का. Right? That is the case. Now Q can be taken as delta H. आपको याद है हम तो हीट चेन को ले ही इंथैल्पी रहे हैं. तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं बेटे, मैंने ना इसमें से सराउंडिंग उड़ाना है. मैंने इस इक्वेशन में सिस्टम लेके आना है. देखो कैसे करता हूं. तो राइट नाउ आई से Q सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H सिस्टम. राइट सर. नाउ you remember delta S is equal to delta H by T. अगर ये सराउंडिंग है तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूं, तो मेरे पास डेल्टा S सराउंडिंग किसके बराबर आ जाएगा? माइनस डेल्टा H सिस्टम बाय T. इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं. ठीक. अगर यहाँ पे डालते हैं इक्वेशन 1 के अंदर तो हमें मिल जाता है डेल्टा S टोटल, डेल्टा सिस्टम minus delta H system by this. I have done this thing. Now see, पूरी इक्वेशन को t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस इक्वेशन को t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. t डेल्टा टोटल, t डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा सिस्टम, पूरी इक्वेशन को. तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई. अब हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. What happened? Minus t delta S total is equal to delta S system minus t delta S system. You remember, ये जो रकम है, ये वाली टर्म, इसको क्या बोलते हैं जी? डेल्टा G system. Now we have arrived, we have converted this equation into ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में ले आए. That is minus t delta S total is equal to delta G surrounding. अगले पेज पे चलते हैं. इस इक्वेशन को बस मन में देख लो. माइनस टी डेल्टा एस टोटल क्या लिखा था हमने पीछे?
minus T delta S total is equal to delta G system. Now you people have done enough chemistry and physics. Absolute temperature can never be negative. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल के जा रहा है डेल्टा एस टोटल कैन नेवर बी नेगेटिव, या पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ना ये नेगेटिव हो सकता है ना ये नेगेटिव हो सकता है, तो किसको नेगेटिव होना पड़ेगा? डेल्टा जी को। दैट इज डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस टोटल which converts to T delta S total is equal to minus delta G system। तो पहुंच गए। आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इसको बोला था और हमने प्रूव किया कि ये किसके बराबर है? डेल्टा जी सिस्टम के बराबर आ गया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग दिस माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, एक सेकेंड, ये कर रहा हूं। दूसरी चीज दैट इज डेल्टा जी सिस्टम इसके ऊपर था एंड टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी सिस्टम। दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टी डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और डेफिनेटली वो डेल्टा जी सिस्टम के बराबर होगा और जो कि क्या होगा? नेगेटिव। वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, हम आपको वैल्यू भी पूछते हैं, बट हम आपसे ये पूछेंगे कि बताओ कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। रिमेंबर, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द डेल्टा जी सिस्टम हैज टू बी नेगेटिव। देखो इसमें सिस्टम है और इसमें एंट्रोपी में टोटल था। आप टी को हटा भी सकते हैं क्योंकि टी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा जी सिस्टम विल बी 0 and delta S system will be 0. Mind it, there's a difference between delta G, that is instantaneous, and delta G naught, that will be product minus reactant. For non-spontaneous process, the delta G system will be positive and T delta S total will be negative. Watch again. The progress of any reaction in terms of delta G can be given as, अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इस एक्सिस पे डेल्टा G है, डेल्टा T है, the process will happen in this way, the way that is being drawn here. I know, just a minute, मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड बेटे, मैं इसको यहाँ लेके आया हूँ। दैट इज, हम अगर दोबारा बनाते हैं इंपॉर्टेंस की वजह से, सिर्फ इम्पैक्ट डालने के लिए आपके दिमाग के ऊपर, तो ये देखिएगा, अगर इस एक्सिस पे फ्री एनर्जी रख लीजिएगा, दिस इज फॉर सिस्टम, एंट्रोपी में ये टोटल था, यहाँ पे टाइम कोऑर्डिनेट रख देंगे, दिस विल बी रिएक्टेंट, दिस विल बी प्रोडक्ट, दिस चेंज will be known as delta G naught R for reaction or system. It will be delta G for product, values आपको दी जाएंगी, minus reactant. This will not be 0. This will be only क्या होना पड़ेगा? Negative होना पड़ेगा अगर प्रोसेस में होना है. But the process does not go like this. ये, सॉरी, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ऐसे आएगा। अगर आप यहां से यहां देखो तो आप इसको डेल्टा जी बोलेंगे, डेल्टा जी बोलेंगे। डेल्टा जी कम हो रही है, वो कम होगी जब तक कौन सी स्टेज नहीं आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इज 0, आई स्ट्रेस डेल्टा जी इज 0, डेल्टा जी नॉट इज नॉट 0। आप रिएक्टेंट से चले या प्रोडक्ट से चले, दोनों तरफ फ्री एनर्जी तो नेगेटिव है और वो तो नेचुरल टेंडेंसी है। दैट इज द सेइंग के इक्विलिब्रियम में तो आना ही आना है। हम आपका कॉन्सेप्ट चेंज करते जा रहे हैं। नो रिएक्शन गोज टू 100% कंप्लीशन, एवरी प्रोसेस गोज टू इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे उसको डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों फेवर करते हैं। दैट इज, on moving from reactant to product,
toward equilibrium, delta G is negative. रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से अगर आप इक्विलिब्रियम की तरफ जाओ, दोनों तरफ आपको नेगेटिव फ्री एनर्जी मिलेगी. At equilibrium, delta G becomes zero. No more change in free energy is observed. And at equilibrium, free energy of the system is minimum. That is why every reaction goes to equilibrium. हम इंट्रोड्यूस करते हैं concentration quotient Q. Concentration Q is defined as concentration quotient, concentration of product mole per liter divided by concentration of reactant at any time t. आपने कोई रिएक्शन 10 मोल से शुरू किया था और रिएक्टेंट 10 मोल था, प्रोडक्ट कुछ भी था. धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो को Q बोला जाता है. ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं बच्चों जो कि आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे साइंस में, राइट? Every biochemical reaction, every chemical reaction follows this. One term. Second term, equilibrium constant is ऐसा लिखना capital K. This is another very important constant for any reaction, delta G, delta H, delta S के जैसा. At equilibrium, the Q becomes constant. At equilibrium, the concentration becomes Q becomes constant. मतलब वो और चेंज नहीं होगी. मान लो 0.7 आ गया, अब वो 0.7 ही रहेगी. प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, बट it will not change. That constant value, right, is known as equilibrium constant K. समझ आया बच्चों? Q की जब वैल्यू फिक्स हो जाएगी, हर रिएक्शन में होगी क्योंकि एक जगह पे जाके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एक रेशियो बन जाती है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं. K equilibrium constant. I told you, I'm repeating it. Delta G and एक सेकेंड पेन चेंज कर रहा हूं बेटे. Delta G and delta G naught are different. Do you understand this? Delta G at any instant is this. This is delta G. This is delta G. At any instant इसको हम free energy delta G बोलते हैं. Whereas delta G naught R has a fixed value for any reaction and it is given as free energy of product minus free energy for reactant. जैसे आप एंथैल्पी में करते थे, जितने मोल्स आएंगे उतनों से मल्टीप्लाई करोगे. Similar to delta H for element in standard state, the free energy is taken as 0. The free energy for element is taken as their 0 लिया जाता है. ठीक, कंटिन्यू. ये आपका पॉइंट आ गया था ना, मैं वैसे नंबर कर रहा हूं 3 समझाने के लिए. The delta G and delta R are different and are related as. Important, दोनों के अंदर ये रिलेशन पाया गया है. डेल्टा G instantaneous, delta G naught standard, plus RT ln is natural log of Q, where Q is the concentration quotient जो अभी समझाया. अभी भी आपको बताया इक्विलिब्रियम पे delta G becomes 0 and K becomes equal to Q. तो हमने फोर्थ इक्वेशन में डेल्टा G को 0 पुट कर दिया और Q को K पुट कर दिया. तो I arrive at this important relationship. ये हम क्या कर रहे हैं? फ्री एनर्जी को एक नया पैरामीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं which is equal to Q, right? वो बराबर कर रहे हैं, उनको कोरिलेट कर रहे हैं. डेल्टा G naught R is minus RT natural log of K. पता नहीं मैथ्स में किया है कि नहीं. Natural log of X is 2.303 log of X. ये मैथ्स या फिजिक्स में आप रिलेशन देखते हैं. तो नेचुरल लॉग की जगह पे मैं 2.303 RT लॉग के पुट कर सकता हूं.
Write equation 7 in your rough notes, please. Just copy equation number 7, बाकी नहीं कॉपी करने का. हो गया? नाउ सी, ये तो एक समुंदर चल रहा है बस. अभी अभी आपने 7th रिलेशन ये लिखा पिछले पेज से, ठीक? मैंने कहा रफ में लिख लेना. -2.303 RT log K. K is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर K आपका राइट लेस देन 1 होगा तो ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी. नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होके डेल्टा G को क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. That will become non-spontaneous process. और अगर आपका K that is positive हुआ तो delta G will become negative, the process will become spontaneous. आप डेल्टा टोटल पॉजिटिव को कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियस होगा. बाय डिफॉल्ट हम टोटल नहीं लिखते हैं. जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो वो अज्यूम्ड है कि टोटल ही है. स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा S को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव. डेल्टा G सिस्टम को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस प्रोसेसेस. अगर तीनों में से एक भी वैलिड हुआ तो बाकी तो वैलिड होंगे ही होंगे. There is going to be no fight between these. No fight between these. You understand? दोबारा देखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल है but you can do it. Watch here. These two are the same. एक नेचुरल लॉग पे है, एक लॉग 3 बेस 10 पे है. तो मैं नेचुरल लॉग K को ऐसा लिख सकता हूं बेटे, इसको 1 बोल देता हूं. लॉग अगर आपने एंटी लॉग लिया, नेचुरल लॉग हट गया, आपके पास आ गया K. और ये राइट हैंड टाइम E की टर्म में चली गई. E एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है. माइनस डेल्टा G और बाय RT, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन. हम लोग आपको कैलकुलेटर नहीं देते हैं तो इस करके हम आपको ये सेकंड रिलेशन सॉल्व नहीं करवाते हैं. बट अदरवाइज इंटरनेशनली आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये दिखता है. अब राइट हैंड साइड पे देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं. द ओनली डिफरेंस इज 2.303 है. अब इसको अगर एंटी लॉग लेते हैं तो ये K हट जाता है और ये 10 की पावर में चले जाती है. 10 की पावर माइनस डेल्टा G R बाय 2.303 R T निकल के आ जाता है. लिख लेना, कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है. नाउ free energy delta G, the maximum work which can be obtained from the cell, useful. And electrical energy, मेरे ये माउस के अंदर एक सेल है, उसमें से कितनी एनर्जी यूजफुल निकल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूं. द डेल्टा G नॉट इज माइनस NF E नॉट. फिर डेल्टा G तो तुम जानते ही हो. N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. सपोज किसी प्रोसेस में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो N 2 था. F माइकल फैराडे 96500 कूलम, it's a constant. And E naught is the voltage of the cell in volts. EMF कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आप सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज कह सकते हैं. स्कूल के लिए EMF ही लिखना बराबर है, बट कोई फर्क नहीं है. इसके डायमेंशंस क्या है? कूलम्स. इसके डायमेंशंस क्या है? वोल्ट. 1 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल. और डेल्टा G भी आपका जूल्स में ही होने वाला है. ठीक. सो ये ग्राफ समझ आया बच्चों? Progress of reaction in terms of entropy, we had done it. And in terms of right hand side, free energy. यहाँ पे इक्विलिब्रियम ने आना है और इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा. इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी मैक्सिमम होगी और फर्दर चेंज नहीं होगी. एंड
द फ्री एनर्जी मिनिमम होगी और फर्दर चेंज नहीं होगी. Let's do some questions based upon the concept which we have discussed, my dear friends. कुछ questions करते हैं dear. For the reaction this question आराम से पढ़ो. The standards Gibbs energy delta G is इतना. Calculate its equilibrium constant. सीधा रिलेशन यूज करना. डेल्टा G, एक मिनट, 86 पेज, सॉरी 48 पेज, अभी वापस आता हूं. तो वही एक बार नजर मार लो. डेल्टा G is minus 2.303 RT log K बेटे. ये minus 2.303 RT log of K. That is log of K is minus 8.1, right? किलोजूल ट्रांसफर 3 जूल बना दिया. 2.303 R की वैल्यू 8.314 and temperature he has given as 1000 Kelvin. आप सॉल्व कर लेंगे और आप इसका जब एंटी लॉग लेंगे ये आ जाएगा 10 की पावर लेट इट बी माइनस एक्स. तो 10 की पावर क्या बन जाएगा? x. That is how do you solve it. अगर लॉग नहीं आता तो इक्विलिब्रियम में मैं भी आपको लॉग सिखा दूंगा, बट अभी नहीं. दिस एज सिंपल लाइक एनीथिंग. ओ, ये तो अलग क्वेश्चन है, ये हमने के निकालना था. ठीक, ये अलग क्वेश्चन है. कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस. के दे रखा है तो डेल्टा जी बेटे वही चीज, आर की वैल्यू 8.314 जूल, टेम्परेचर 298. अगर नहीं भी दिया बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर दिस log of 2.47 into 10 raised to power minus 29. That will be your answer. Free energy. See, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे. Let's see कैसे कर रहे हैं. In a fuel cell, फ्यूल सेल होता है जिसमें से हम डायरेक्टली वो निकाल के एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं. मिथेनॉल को जला के सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले आते हैं. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेन फॉर द रिएक्शन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क. इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर मिथेनॉल इज इतना, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दे रहा है. Calculate also the efficiency of conversion of Gibbs energy into useful work. See, वो आपसे क्या क्या चीजें पूछ रहा है, एक एक करके चीज को ध्यान में रखते हैं. पहले एक चीज को देखते हैं. That can be converted into useful work, right? ये तो आपसे उसने क्या पूछा है? डेल्टा G नॉट. Delta G naught is delta G for product minus summation of delta G for reactant. याद आ गया? इधर से कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखो minus 394.4 into 1. वाटर की वैल्यू देखो बेटे plus 2 into minus 273.2 माइनस मिथेनॉल की वैल्यू देखो 166.2 minus 0. Why? Free energy is going to be taken as 0 for elements. एक मिनट बेटे, मैं टाइम बचाते हुए डेल्टा जी की वैल्यू इधर से ले रहा हूं -702.6 किलोजूल. एक आंसर आ गया, राइट? अब सेकंड पार्ट पे देखते हैं. इस पार्ट पे ध्यान करते हैं. If standard enthalpy of combustion is this, calculate the efficiency of conversion. Did we discuss that percentage
efficiency delta G by delta H into 100. डेल्टा G कितना निकाला 702.6. डेल्टा H कितना आ रहा है 726 into 100. That will give you, मैं 96.78 यहीं से ले रहा हूं 96.78%. You must do it once again. आपके लिए दिए गए हैं, आप फिर भी कर लीजिएगा. Now see this question. Calculate delta SR naught. Delta standard is summation of for product minus entropy of reactant. You know बच्चों, आपको इस इक्वेशन को ध्यान करना है, बट अब याद रखना जहां पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंथैल्पी 0 होती थी एलिमेंट्स की, नाउ एलिमेंट्स की रदर किसी की भी एंट्रोपी 0 नहीं होती है. बस ये ध्यान करना है, एंट्रोपी इज नेवर एवर गोइंग टू बी 0. हेल्प मी आउट. Fe2O3 वैल्यू देखो 87.4. 2 into 87.4 ब्रैकेट बंद. आयरन की एंट्रोपी देखो 4 मोल्स 27.3. O2 की एंट्रोपी देखो प्लस 3 into 2O5. That will be your answer. पूरे थर्मोडायनामिक्स में डियर सिर्फ प्लस एंड माइनस ही तो करना है और तो आपने कुछ करना भी नहीं है. So watch what is happening. So ditto similarly calculate the free energy change. क्या पूछा है डेल्टा जी, डेल्टा एच दे रखा है, एंट्रोपीज दे रखी है. सो इधर ये दो चीजों को आपको कंबाइन करवा रहा है. दिस हैज बीन गिवन. ना भी देता तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की देता. इसको आपको कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ बच्चों रिएक्टेंट. रिमेंबर एलिमेंट्स की एंट्रोपी 0 नहीं होती है. गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी टेकन एज 0. I will give these questions as homework. You should do, right? ये सारे with hints हैं. Please इनको solve करेंगे. मैं दोबारा दिखा देता हूँ. 94 का hint, 95 and 97 hints has been provided. You should solve them again. This is for your competition. Calculate the entropy change when 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from this to this. Do you remember? थोड़े समय पहले आइसोथर्मल के लिए हमने ये रिलेशन किया था बेटे. अब 2.303 it is 2, R की वैल्यू 8.314 log of V2 10/1 by 1. Must do it. अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी is found to be 0, what is the equilibrium constant? Delta G naught minus 2.303 RT log K. The standard free is 0, so that means log K is equal to 0, right? Log K is equal to 0. तो चेक करना K कितना होगा, 1 होगा कि क्या होगा. log K is 0, तो उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है. log of 1 is what? You do it. चेक करिएगा. That is, I'm giving you homework. Comment upon the following statement.
And exothermic reaction is always spontaneous? No. No. Delta H का negative होना is not the sole and sufficient condition. Right? Exothermic reaction thermodynamically spontaneous होगा? No. हमने काफी सारे reaction देखे. The reaction with delta G less than 0, always an equilibrium constant greater than 1? Yes. Right? अगर आपका K less than 1 हुआ तो डेल्टा G हमने पीछे प्रूव किया था नेगेटिव होगा. The process will be what? Spontaneous. Now, how to predict the spontaneity of the given reaction from the data of delta H and delta S? So now, the discussion is extremely important. The discussion is extremely important. मेरे साथ रहो, करते हैं, देखते हैं. तो हमें याद करो डेल्टा G, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. डेल्टा H का अगर लेस देन 1 हो, दैट इज नेगेटिव हो, तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है. ये सिस्टम के लिए है बेटे सारा, है ना. और अगर डेल्टा S ग्रेटर देन 1 है, दैट इज पॉजिटिव है, तो वो फेवरेबल है. अगर डेल्टा H इज पॉजिटिव है, सो दैट इज डियर अनफेवरेबल. और अगर डेल्टा S नेगेटिव है, दैट इज अनफेवरेबल है. क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो डियर? डेल्टा H का नेगेटिव, डेल्टा S का पॉजिटिव होना is favorable. And please remember these all values for system. टोटल की बात नहीं हो रही. तीसरी बात, अगर इनका रिजल्टेंट डेल्टा H इसका नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा. और इसमें भी अगर -10 होगा, -15 होगा, so this will be more spontaneous and this will be less spontaneous. अगर डेल्टा G पॉजिटिव होगा, the process will be non-spontaneous, नहीं हो सकती है. और अगर डेल्टा G 0 आ जाएगा, the process will be at equilibrium. You understand? The process will be at equilibrium होगा. तो हम आपको 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवाने वाले हैं. राइट? एक सेकेंड, कुछ इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है. मैं टीचर हूं तो मैं लंबा रास्ता ले रहा हूं. आपको इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप सीख जाएंगे बड़ी जल्दी. ठीक है जी. तो देखो बेटे, 4 कंडीशंस लेके चलूंगा. पहली कंडीशन, डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा T डेल्टा S इज पॉजिटिव. अरे देखो यार, तुम लोग समझो, तुम लोग अपने राइट हैंड साइड पे जाना चाहते हो, तो 2 फोर्सेस हैं. एक डेल्टा H, वो भी तुम्हें धक्का मार रही है, और दूसरी फोर्स है T डेल्टा S इस, वो भी तुम्हें राइट हैंड साइड की तरफ पुश कर रही है. तो बेटे आप तो अपने टारगेट पे पहुंचेंगे ना स्पॉन्टेनियस. दोनों कंडीशंस क्या है? फेवरेबल है. तो आपको अपने राइट हैंड साइड को जाने से कौन रोक सकता है? तुम एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं. 2 फोर्सेस हैं, एक तुम्हारी मेहनत, एक तुम्हारा स्वभाव. तुम्हारी मेहनत कहती है मेहनत करो, तुम्हारा स्वभाव कहता है नहीं मैं जाके टीवी देखूं या मैं काम ना करूं, मैं टीचर की बात ना सुनूं. अगर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा स्वभाव दोनों ही है काम करने का, तो तुम्हें कौन रोक सकता है? यू विल बी सक्सेसफुल. सो अब दूसरी कंडीशन में जाते हैं. सुनो, दिस इज नेगेटिव, डेल्टा H फेवरेबल है, और T डेल्टा S नेगेटिव है, अनफेवरेबल है. राइट? तो बच्चों लॉजिक लगा के देखो, लॉजिक लगाओ. डेल्टा H आपका नेगेटिव है, फेवरेबल है, तो अगर तो डेल्टा H
बड़ा होगा फेवरेबल अनफेवरेबल से, तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा ना। द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। सिंपल लॉजिक देखो, फेवरेबल और अनफेवरेबल में से कौन सी बड़ी होनी चाहिए? द फेवरेबल फोर्स। आपकी मेहनत जो कि पॉजिटिव है और आपका जो स्वभाव नेगेटिव है, अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आप तो कामयाब हो गए होंगे। और अगर अनफेवरेबल बड़ी हुई तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर फेवरेबल और अनफेवरेबल बराबर होंगी तो आप बीएससी की तरफ चले जाएंगे, इक्वल में आ जाएगा, ना आपने तरक्की की ना आपने अवनति की। दैट इज गोइंग टू बी द केस। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टार लगा रखा था ये पॉइंट देखने का है, ये वाला ए पॉइंट देखने का है, इधर वाला। ठीक, एक सेकंड रुको, हाईलाइट कर देता हूं ये वाला पॉइंट, इसको हाईलाइट अगले पेज पे करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पी टी ओ। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने बोला एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच एक्सो के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। वो पिछले केस में मैंने एक्सो लिया था ना, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही तो होगा, राइट। दोबारा देखो, यहाँ पे आ गया। और टी डेल्टा एस हमारा क्या था? वो नेगेटिव था, सॉरी नेगेटिव था। ये फेवरेबल था और ये क्या था? अनफेवरेबल था। अरे वहीं से लेके आ रहा हूँ बच्चों, ठीक है। दोनों टर्म आपकी क्या थी? नेगेटिव थी। प्लीज वॉच, सिर्फ आपको समझाने के लिए। डेल्टा जी, डेल्टा एच इज फेवरेबल और बड़ा है, ऐसे ही ज्यादा ध्यान नहीं किया, इसको 50 बोल दिया और इसको मैंने 20 बोल दिया। इसके आगे माइनस साइन लगाया और इसके आगे माइनस साइन लगाया। -50 प्लस 20 -30 आ गया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टी डेल्टा एस को अनफेवरेबल को कम कर रहा हूं। -10 कर दिया, -50 -10 -40 आ गया, और कम कर दिया, -5 कर दिया, तो ये -45 आ गया। व्हाट इज हैपनिंग? डेल्टा जी इज डिक्रीजिंग नेगेटिव स्केल पे, देयरफॉर रिएक्शन क्या हो जाएगा? मोर स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाएगा, द मोर स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं exothermic reactions are favored by decrease in temperature? The exothermic reactions are favored by decrease in temperature. Very very important. डेल्टा H नेगेटिव फेवरेबल है, T डेल्टा S अनफेवरेबल। अरे साइंस ना भी देखो, अनफेवरेबल को जितना कम करोगे तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ेगी। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं तो टी डेल्टा एस अनफेवरेबल कम होती है टेम्परेचर के घटाने से, प्रोसेस बिकम मोर स्पॉन्टेनियस। आप अपनी दुनिया में देखो, तुम लोगों ने पक्का लोहड़ी वाले दिन या कभी देखा होगा, हम पुराने जमाने में चूल्हे जलाते थे, द फायर पॉट्स। तो हम ऐसे ब्लो करते थे हवा को एक पाइप के रास्ते से। जब आप उसके ऊपर हवा छोड़ते हो तो वहां का टेम्परेचर कम होता है, आग और भड़कती है। समझा? डोंट फॉरगेट इट। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, आप भी देखिएगा। ऊपर ए लिख दिया है, इन सब डिस्कशन के ऊपर ए लिख दिया था ताकि आपके लिए बचा रह जाए बेटे। अब दोबारा देखो बी पार्ट, द बी पार्ट। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये केस तीसरा है और ये केस चौथा है। अब फोर्थ केस को देखो, पहले इसको खत्म करते हैं। आपने राइट हैंड साइड पे जाना है, दो फोर्सेस हैं डेल्टा एच और टी डेल्टा एस,
दोनों ही आपको अपोज कर रही है, तो कौन ताकत आपको वहां तक पहुंचा देगी? ऑल नॉन स्पॉन्टेनियस। यू अंडरस्टैंड? यस। अब यहां पे देखते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव इज अनफेवरेबल, तुम्हें याद है शुरुआत में ही करा दिया था, और टी डेल्टा एस पॉजिटिव इज फेवरेबल। अरे बच्चों वही कहानी है, अगर फेवरेबल फैक्टर बड़ा होगा तो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, बट ऑब्वियस। तो अगर टी डेल्टा एस जो कि फेवरेबल है, डेल्टा एच जो कि अनफेवरेबल है, उसके मुकाबले बड़ी होगी तो प्रोसेस हो सकती है। अब आप दोबारा देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रिपल स्टार यूज किया। प्रोसेस कौन से हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तुम एंट्रोपी को कंट्रोल सिर्फ टेम्परेचर के रास्ते से कर सकते हो। व्हाट विल हैपन माय डियर फ्रेंड्स? फेवरेबल बढ़ेगा और प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होती चली जाएगी। दोबारा देखिए, दिस इज स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये फेवरेबल है और ये क्या था? अनफेवरेबल। As we increase temperature, magnitude of favorable condition increases. Therefore, delta G becomes more negative and process becomes what, my dear friends? More and more spontaneous. Endothermic reactions are favored by increase in temperature. Very, very important for your day-to-day smartness. Exothermic reactions are favored by decrease in temperatures. एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो फेवर होंगे। आग लगी हुई है, वहां पे अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आग और भड़केगी, और अगर आग लगी हुई है वहां पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, आग बुझ जाएगी। उसको एक डब्बे में डाल दो, राइट, आग को, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट डियर, द एक्सो की जगह पे एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे टेम्परेचर कम होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो फेवरेबल होगा। इट्स अ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हियर, यू शुड नॉट लीव इट। इस चैप्टर को अगर मैंने आपको 2 घंटे का लेक्चर दिया है तो तुम्हें 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, देन यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस। ये वाला आज वाला सेशन। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, समझते हैं। Delta H and delta S for this reaction is this much. Calculate the temperature at which the Gibbs energy for the reaction will be 0. मतलब वो पूछ रहा है, बताइए कब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा। अब इक्विलिब्रियम पे तब आएगा ना, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G will become 0, तो डेल्टा H will become T डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू देखो कितनी दी है, 30.56 जूल बना लिया। टेम्परेचर निकालना है, एंट्रोपी 6.60 दी है, तो टेम्परेचर इज 30.56 into this divided by 6.60। प्लीज मैं आंसर यहां से ले रहा हूं, 4630 केल्विन। आपका एक आंसर आ गया डियर, 4630। यू गॉट इट। अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, उसने पूछा विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर बिलो दिस। डेल्टा H कितना था? पॉजिटिव था, राइट? तो एट 4630 केल्विन इट विल बी एट इक्विलिब्रियम। अब ये एंडोथर्मिक है, तो ये देखो 4630 पे डेल्टा G
is 0. तो अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे, द रिएक्शन विल बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस इस टेम्परेचर से, और अगर आप इससे बढ़ाएंगे, द प्रोसेस विल बिकम स्पॉन्टेनियस. यू अंडरस्टैंड? अरे ध्यान से देखो, एंडोथर्मिक को ये जो टेम्परेचर आया है, अगर फेवरेबल बनाना है तो टेम्परेचर को बढ़ाओ. अगर इससे नीचे रखा तो हमारी प्रोसेस क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस. तो इसका जवाब क्या होगा? नो, बिकॉज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अगर एक्सो होता तो उससे ऊपर होता. At 4630, reaction will be equal. Below this temperature, delta G will be positive. क्योंकि आपने T डेल्टा S को डेल्टा H के जब बराबर इक्वेट किया था, अगर डेल्टा G को डेल्टा H माइनस T डेल्टा S निकालेंगे, this term will become positive. ये कुछ ऐसा बन जाएगा 50 माइनस 60. At this stage, what will happen? The delta G will become, I'm sorry, 50 माइनस, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, अगर इसको कम किया तो 50 माइनस 40, दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो यहाँ पे द रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि उस जगह पे डेल्टा H और T डेल्टा S दोनों पॉजिटिव होंगे और डेल्टा H हमारा नॉन फेवरेबल था, तो वो बढ़ता चला जाएगा, और जो अनफेवरेबल है वो और इस प्रकार से चेंज हो जाएगा. This is the question again for you people. You should do that. अब ये देखो, predict whether it is possible or not possible. Right? मैं यहां से करवा रहा हूं, आपके लिए वो छोड़ा है. To reduce magnesium oxide using carbon at 298 Kelvin. तो आपको डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है. आपने पहले स्टेप में क्या करना है? सुनो, ऐसे ही जाना है. आपने let us calculate, right, at which temperature the reaction becomes 0. तो आपने बच्चों ये टेम्परेचर निकाल लिया, ठीक, ये टेम्परेचर आ गया. If not, at what temperature the reaction becomes spontaneous? डेल्टा H क्या था? पॉजिटिव. अब एंडोथर्मिक था, तो रिएक्शन इससे ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा. समझ पा रहे हो? दो सिचुएशन आएंगे, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें भी टेम्परेचर निकाल लेना. एंडोथर्मिक में वो जो टेम्परेचर आएगा उससे ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा. एक ऑप्शन हो सकती है एक्सोथर्मिक, उसमें भी टेम्परेचर निकाल लेना, दोनों को इक्वेट करके उस टेम्परेचर से नीचे स्पॉन्टेनियस होगा. समझा? दैट इज द केस आई एम टेलिंग यू. और आप प्रेडिक्ट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट टू रिड्यूस, आप सिंपली डेल्टा G निकाल के बता सकते हैं. ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव. सो एट 298 the reaction is not possible. समझना. देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका रिएक्शन एंडो है, फर्स्ट स्टेप डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S निकाल के टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेना. देन एट टेम्परेचर बिलो, से इसको X बोल देते हैं, बिलो X the process will be non-spontaneous. Temperature above X, the process will become spontaneous. Because एंडो के केस में डेल्टा H को छोटा होना पड़ेगा, और अगर आपके पास एक्सो हुआ तो आप डेल्टा H को T डेल्टा S के इक्वेट करके X निकाल लेना. Now temperature below X, the process will be spontaneous, and temperature above X, the process will become non-spontaneous. Because इस वक्त आपके पास जो डेल्टा H है
या T delta S कर लो, उसको कम होना पड़ेगा. That will be T delta S. Now this is exo में डेल्टा H is नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फेवरेबल को बड़ा होना पड़ेगा. यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव है, सो दिस इज अनफेवरेबल है, तो इसको अनफेवरेबल को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा. Solve few questions, you will be suitably rewarded. I'm giving this question as a homework to you people. Do it, you will be rewarded. वो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बेटे. होमवर्क होमवर्क तो homework, solve it. Now we are passing through one more concept. इंसान है, how can we make non-spontaneous reaction spontaneous reaction? For example, ये रिएक्शन इंसानियत के लिए जरूरी है. 2Fe2O3 iron solid plus 3O2 gas, delta H is positive, delta G is positive. डेल्टा जी पॉजिटिव तो मतलब नहीं हो सकता. हाँ, आपको पता है रिवर्स रिएक्शन रस्टिंग इज स्पॉन्टेनियस, बट आयरन ऑक्साइड को तोड़ के आयरन कैसा पैदा करे, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. सो हाउ कैन वी मेक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? इफ अ रिएक्शन has delta G is equal to positive, right? Non-spontaneous. Non-spontaneous इसको एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं. सुनो, डेल्टा G is equal to नेगेटिव को एक्सरगोनिक बोलते हैं. डेल्टा G is equal to पॉजिटिव को एंडरगोनिक बोलते हैं. जैसे डेल्टा H is equal to नेगेटिव को एक्सोथर्मिक बोलते हैं. डेल्टा H is equal to पॉजिटिव को एंडोथर्मिक बोलते हैं बेटे. You understand? Now, see, if a reaction has delta G is equal to positive, that is non-spontaneous endergonic reaction, that can be made spontaneous by coupling it with some another reaction so that net delta G for the combined reaction becomes delta G is equal to negative. ऐसे समझो, तुम लोगों ने कोई किताब खरीदनी थी, वो 5000 रुपीज की आती थी, आपकी पॉकेट में 700 रुपीज थे, तो तुम कैसे किताब लोगे? नॉन स्पॉन्टेनियस. दूसरी सिचुएशन, किताब लेनी थी 5000 की थी, तुम्हारे घर में पुरानी जो तुमने पढ़ ली हुई है वो किताबें पड़ी थी, वो तुम मार्केट में ले जाते हो और तुम उनको 6000 रुपीज में बेच देते हो. तो 6000 रुपीज तुम्हारी जेब में वहां से आ गया, 700 आपके पास पहले था, 5000 की बुक आनी थी. लो जी, बात बन गई. हमने नई किताब खरीदने को पुरानी किताब बेचने के साथ जोड़ दिया. इनको बोलते हैं coupled reaction, in which product of one reaction becomes reactant of another reaction. For example, let's see that. There are some reaction for which delta G is not negative, positive, and therefore they are non-spontaneous. However, these can be made spontaneous if these reactions are carried by coupling जोड़ देना with some another reaction having very large negative energy values, so that Gibbs energy for the two combined reaction becomes negative. Let us consider the decomposition of iron oxide. वही चीज जो हम पीछे कर रहे थे, इसमें delta G is positive. So this reaction can be made spontaneous by coupling with a reaction having large negative value. देखो,
Let us consider this reaction. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है ऑक्सीजन के साथ, इस इक्वेशन के मुताबिक -515 डेल्टा जी आती है। हम जुगत लगा रहे हैं, हम सेकेंड रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 360 3O2 6CO दैट इज -1544 एनर्जी आ जाएगी। अब आप इसको और इसको कंबाइन कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया है, एक मिनट इसको रब कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं। 2Fe2O3 यहां से आया, 6CO यहां से आया, इन दोनों को इकट्ठा करवाएंगे। अब जब इन दोनों को इकट्ठा करवाएंगे दोस्तों, तो आपके पास, आपको पता है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दो, 3O2 कट जाएगा, आपके पास 2Fe2O3 6CO 4 आयरन 6CO2 डेल्टा G -56 आ गई। व्हाट इज दिस? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो अकेला फर्स्ट रिएक्शन नहीं हो रहा था, अकेला सेकंड रिएक्शन हो रहा था, अगर दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएंगे। आप लोगों ने कभी सुना है कि आयरन की एक्सट्रैक्शन के दौरान हम उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, ये वही तो काम हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? वी एक्ट लाइक दिस। The concept of coupling of reaction is very useful in biological system. It will be discussed in biomolecules class 12th. तो ATP हमारी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत एनर्जी रिच है। वो कुछ ऐसा है कि आपका बैंक है, उसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पैसे की जगह पे एनर्जी निकाल देते हैं। ATP जब पानी के साथ रिएक्ट करता है, कन्वर्ट होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट आयन, डेल्टा जी इज -31 किलो जूल है। ये वाला रिएक्शन कपल कर दिया जाता है किसी और रिएक्शन के साथ, आप नहीं करते, कुदरत कर रही है, किसी और रिएक्शन के साथ, सो दैट वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बायोसिंथेसिस ऑफ सुक्रोज फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैज डेल्टा जी ऑफ +23। कुदरत ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रही है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ के, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए डेल्टा जी +23 चाहिए। कुदरत इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठा जोड़ देती है, इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब सुक्रोज बनाते हैं, उसी समय एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता। डेल्टा जी -8, 23 फ्री एनर्जी चाहिए, 31 मिली, तो नेट आपके पास -8 आ गया। दैट इज द प्रोसेस हैपेंस। भगवान कुदरत इनको जोड़ लेती है। With this, you have covered a wonderful chapter of your 2-year chemistry that is known as thermodynamics. This is one of the most important topic of 2-year chemistry. इससे बड़ा और इससे important chapter तो इक्विलिब्रियम ही आएगा. That will be the next chapter we will be starting. Got it? तो यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ से बेटे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड लक, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस क्लास इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बेटे। सुधांशु जेटली साइनिंग ऑफ। गुड लक।